Good morning, class 10th. Today I am going to explain the next reaction, that is decomposition reaction. Decomposition reaction is that in which a single substance break down to give two or more simpler substances. Clear? बेटा इसके अंदर एक वर्ड है decompose. As we know, compose means to form, कुछ बनाना, उसको हम बोलते हैं compose. मीन्स कोई गाना कंपोज किया, मीन्स कोई गाना बना दिया. तो यहाँ पर भी कंपोज का मीन्स क्या होगा? किसी चीज़ की फॉर्मेशन. जो वर्ड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं डी मीन्स ब्रेक डाउन, रिमूवल और लॉस. ठीक है, डी मीन्स ब्रेक डाउन, रिमूवल और लॉस. तो इसमें हमारा क्या होगा? जो भी हमारे पास गिवन सब्सटेंस है, सिंगल कंपाउंड है, उसको ब्रेक करेंगे. ठीक है, इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस. सो वी हैव वन रिएक्टेंट. वी गिव एनर्जी टू द रिएक्टेंट to break down this reactant into two or more simpler substances. Clear? So the reactant on absorption of energy, here absorption of energy takes place and resulting in formation of product. The energy which supply here is in the form of heat, or it may be in the form of light, or it may be in the form of electricity. Clear? Energy is absorbed by the reactants in the form of heat, light and electricity. It means the decomposition reactions involved absorption of energy or gain of energy. That's why these reactions are named as endothermic reaction. Clear? इन reactions को हम क्या बोलते हैं? Endothermic reaction. What do you mean by endothermic reaction? The reactions which involves absorption or gain of energy to form the products is called as endothermic reaction. So accept one example. Decomposition of vegetable matter to form compost. This process is showing here decomposition, but in actual this process is exothermic in nature. Clear? We have already discussed about this point. This point is very important for multiple choice question. It can be asked as, name the process involved during the decomposition of vegetable matter into compost. You have to write the answer as exothermic process. क्लियर? अदरवाइज कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आती हैं इसके अलावा उन सब का नेचर कैसा होगा? एंडोथर्मिक नेचर. क्लियर? नेक्स्ट आता है, नाउ इफ द एनर्जी सप्लाई टू द रिएक्टेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. क्लियर? सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन. हेयर थर्म मीन्स हीट. ठीक है, थर्मल वर्ड है. थर्मल में हम एक वर्ड ढूंढ पा रहे हैं, थर्म. थर्म का मतलब बेटा क्या होता है? हीट. सो इन दिस केस decomposition of the given substance takes place in presence of heat. That's why such reactions are called as thermal decomposition reaction. If the energy is supplied in presence of light, light means photo. Clear? Yeah, photo means light. So such type of reactions are called as photo decomposition reaction. The reactions which involves breakdown of a substance in presence of light, they are named as photo decomposition reaction. These reactions are also named as photolysis. Clear? Such reactions are also named as photolysis. What does this photolysis means? I am writing here, photolysis is formed by combination of two words. One is photo and other is lysis. Students, this word lysis means breakdown. Clear? The word lysis means breakdown and photo means light. Clear? Photo means light. So the reaction which involves breakdown of a substance in presence of light are termed as photolysis reaction. Clear? Now the third is the reaction in which energy is supplied in the form of electricity. Such type of reactions are called as electrolytic decomposition reaction. Clear? Such type of reactions are called as electrolytic decomposition reaction, or these reactions are also named as electrolysis reaction, and the process is simply called as electrolysis. Again, the word electrolysis means it is again formed by combination of two words. First is electro and second one is the lysis. Lysis means breakdown. Lysis means breakdown. Now the breakdown takes place in presence of electricity. Electro means in presence of electricity. Such type of reactions are called as electrolytic decomposition reaction, or simply they are called as electrolytic reaction. Now
We will do some more examples of these decomposition reaction one by one. First of all, I am going to explain the first decomposition reaction, that is thermal decomposition reaction. Thermal decomposition means breakdown of a substance in presence of heat. It involves 2 to 3 examples, and all examples are very, very, very important. Questions are always asked from this topic. Now, thermal decomposition reaction. First example is thermal decomposition of lead nitrate. Students, lead nitrate is a compound having formula PbNO3 twice. This compound is formed by crossing the valencies of lead and nitrate. This compound is white solid or white in color. Clear? This lead nitrate is white in color, and the physical state of substance is solid. This is the state symbol solid I am writing here. This triangle means heat. ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? हीट. दिस ट्राइंगल मीन्स हीट. इट मीन्स वी आर हीटिंग दिस लेड नाइट्रेट. अब इसको हम हीट दे रहे हैं, इसका मतलब हम क्या दे रहे हैं? इसको हीट. देयरफॉर दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर. दिस लेड नाइट्रेट डिकम्पोज मीन्स ब्रेक डाउन होगा बेटा इसका इनटू lead oxide PbO with evolution of NO2 gas and O2 gas. This is gas, this NO2 is gas, and this PbO is solid. And the color of this PbO formed on decomposition of white solid is yellow in color. Clear? You have to learn all the color of this compound. And the NO2 gas is evolved with brown fumes. Clear? The gas which produces brown fumes in the nitrate salt is always NO2 gas, because nitrate salt on decomposition always produce NO2 gas. Clear? अब बेटा क्वेश्चन कैसे आएगा? List to observation when lead nitrate is heated or when lead nitrate undergo decomposition. या फिर a white salt is heated to produce a yellow solid and reddish brown fumes of a gas. Identify the yellow solid and name the gas which produces brown fumes. Clear? तो क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट करना सीखेंगे. The second example is thermal decomposition of ferrous sulphate. The formula of ferrous sulphate is FeSO4. This ferrous sulphate is also named as green vitriol. Clear? This ferrous sulphate is commonly named as green vitriol. The color of this ferrous sulphate is light green. लाइट ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं बेटा इसके. एंड द फॉर्मूला ऑफ दिस साल्ट इज़ FeSO4 इंटू 7H2O. अगर हमने साल्ट के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, इट मीन्स दिस साल्ट इज़ नेम्ड एज हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट. क्लियर? हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट. अगर हमारे पास सिंपली लिखा होता है फेरस सल्फेट तो उसको FeSO4 करेंगे. अगर कलर स्पेशल मेंशन करता है ग्रीन कलर है तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स को भी वहाँ पर ऐड करना है. नाउ अगेन ऑन हीटिंग, अगेन दिस इज एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन which is also endothermic in nature. On heating, first of all, the 7 water molecules undergo evaporation to produce FeSO4 solid with evolution of 7 water molecules liquid. The physical state of this substance is also solid. And the salt which consists of these water molecules, such type of salts are called as hydrated salt. क्लियर बेटा? जिन साल्ट्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन साल्ट्स को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड साल्ट. क्लियर? दीज साल्ट्स आर कॉल्ड एज हाइड्रेटेड साल्ट. एंड दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर नेम्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ऑल दीज पॉइंट्स आर important for your exam point of view, and these water molecules are called as water of crystallization. क्लियर? तो जिस भी साल्ट के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होगा इट मीन्स वो साल्ट हमारा कैसा होगा? हाइड्रेटेड साल्ट. और मोस्टली बेटा ये साल्ट्स कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं. जिन साल्ट्स के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है वो साल्ट कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं. तो अब की बार हमने साल्ट को हीट किया है. हीटिंग से सबसे पहले क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होगा बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एज शोन हियर. अब जब इस साल्ट से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे तो जो बचा रिमेनिंग साल्ट है हमारा फेरस सल्फेट, दिस साल्ट इज़ कॉल्ड एज एनहाइड्रस फेरस सल्फेट.
डिफरेंस बेटा शायद क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ कॉल्ड एज एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। लेट मी टेल यू अगेन, यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया है हाइड्रेटेड और यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया है एनहाइड्रस। जहाँ पर वर्ड आता है हाइड्रेटेड इट मीन्स वहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, क्लियर। और जहाँ पर वर्ड है एनहाइड्रस इट मीन्स वो साल्ट में से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो वहाँ से लूज़ हो चुका है, वो रिमूव हो चुका है, क्लियर। अभी हमारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। नाउ दिस फेरस सल्फेट एनहाइड्रस, दिस साल्ट is green in color, on heating it becomes white in color। डल कलर आएगा बेटा इसका, जो ग्रीन कलर था वो इसमें से क्या हो जाएगा, डिसअपियर, द साल्ट बिकम्स वाइट। वाई द साल्ट बिकम्स वाइट, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाई दिस साल्ट इज ग्रीन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्लियर। वेयर डज द वाटर मॉलिक्यूल्स गो, वाटर मॉलिक्यूल्स अंडरगो इवेपोरेशन, क्लियर। नाउ दिस फेरस सल्फेट ऑन फर्दर हीटिंग और ऑन विगरस हीटिंग, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि विगरस हीटिंग तो उस केस में जो रिएक्शंस आएंगी वो दोनों लिखनी है। इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 विद इवोल्यूशन ऑफ गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ध्यान रखना बेटा, जब भी सल्फेट साल्ट होगा, यहाँ पर साल्ट हमारा कौन सा है, सल्फेट। सल्फेट साल्ट से हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती हैं, क्लियर। जब भी हमारा सल्फेट साल्ट होगा तो वहाँ से गैसेस कौन सी प्रोड्यूस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अभी पीछे एग्जांपल क्या था, अगर हमारे पास साल्ट है नाइट्रेट का तो गैस वहाँ पर कौन सी इवॉल्व होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लियर। नाउ दिस फेरिक ऑक्साइड ऑब्टेन्ड is reddish brown in color. This is reddish brown in color and these gases produces smell of burning sulfur, smell of burning sulfur, clear। अब बेटा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो बताती हूँ इसमें। बेटा क्वेश्चन आएगा इसमें, अ ग्रीन साल्ट ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू प्रोड्यूस कलरलेस suffocating gas and leaves behind brown residue, नेम द साल्ट एंड राइट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्लियर। एक ग्रीन कलर का साल्ट है जिसको हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होकर प्रोड्यूस करता है सफोकेटिंग कलरलेस गैस होती है, स्मेल सल्फर लाइक स्मेल है गैस की, सफोकेटिंग स्मेल है। सफोकेटिंग मीन्स जो हमें प्रॉपरली रेस्पायर ना करने दे। एंड लीव्स बिहाइंड अ रेडिश ब्राउन रेजिड्यू, रेजिड्यू मीन्स कुछ बचा हुआ जो वेस्ट है वो रेडिश ब्राउन कलर का है। तो साल्ट का नाम बताओ और उसकी रिएक्शन लिखो। तो बेटा इसमें आपको साल्ट का नाम लिखना है, फेरस सल्फेट लिखो तो भी ठीक है, अगर आप राइट करते हो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट तो भी करेक्ट है ये, क्लियर। रिएक्शंस आपको ये लिखनी है, देन ये फॉलो करनी है। अगर आप बीच में इसको स्किप कर देते हो तो भी चलेगा। फेरस सल्फेट 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, उसके बाद डायरेक्ट ये और कंप्लीट कर दो इसको, क्लियर। तो हमारा उस केस में जो मार्क्स हैं वो फुल मिलते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Decomposition in presence of electricity. The setup of the apparatus is given as, in this case we have taken a plastic mug, हमने एक प्लास्टिक का मग लिया है, ड्रिलिंग मशीन की हेल्प से यहाँ पर हमने होल किए हैं और इसके बेस पे हमने 2 इलेक्ट्रोड को फिट कर दिया है, क्लियर। दिस इज़ कार्बन विच विल एक्ट एज कैथोड एंड दिस इज़ कार्बन रोड विच विल एक्ट एज एनोड। और दोनों को इलेक्ट्रोड्स को हमने एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, क्लियर। और इसको स्टॉपर की हेल्प से एयर टाइट कर दिया है ताकि इसमें से जो लिक्विड लेंगे उसमें लीकेज ना हो। इसको हमने अच्छे से स्टॉपर से इसको कनेक्ट कर दिया है। देन वी हैव फिल्ड दिस मग विद वाटर विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हेयर, दिस सल्फ्यूरिक एसिड विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, हेल्प इन आयोनाइजेशन ऑफ द गिवन सब्सटेंस इनटू रिस्पेक्टिव आयंस। तो यहाँ पर ये आयंस प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा ताकि जो हमने वाटर लिया है वो जल्दी से क्या हो जाए, आयोनाइज, बिकॉज इट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अदरवाइज वाटर के अंदर आयोनाइजेशन नहीं होगा, दैट्स वाई वी हैव एडेड सल्फ्यूरिक एसिड हेयर, क्लियर। नाउ द ट्यूब्स आर टेकन ओवर दिस 2 इलेक्ट्रोड। व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट by switching on the battery, it is observed that the bubbles of gas start rising from both the electrode। जब इसको ऑन करेंगे बैटरी को तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रोड हमने यूज़ किए हैं और जो 2 टेस्ट ट्यूब यूज़ कर रखी हैं उनके अंदर बबल्स प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो गए हैं। एंड लीव्स द
लेवल्स ऑफ वाटर इन द टू टेस्ट ट्यूब स्टार्ट्स फॉलिंग, और जो वाटर का लेवल दोनों टेस्ट ट्यूब में वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज़ पहले वाटर यहाँ तक फिल था, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, वाटर का लेवल डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगा और यहाँ पर क्या होंगे, बबल्स प्रोड्यूस होंगे। कुछ टाइम तक इसको हम ऐसे ही स्टार्ट रखेंगे, फिर हम बैटरी को स्विच ऑफ करेंगे कुछ टाइम के बाद और अपने रिजल्ट को ऑब्जर्व करेंगे। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, द टेस्ट ट्यूब कवरिंग द कैथोड, द टेस्ट ट्यूब कवरिंग द कैथोड। इन दिस टेस्ट ट्यूब द अमाउंट ऑफ गैस, ये जो वेकेंट स्पेस दिखा रखा है बेटा, इट मीन्स यहाँ पर गैस कलेक्ट हो चुकी है, बाकी ये वाटर प्रेजेंट है विद एसिड, और जो खाली स्पेस है इट मीन्स यहाँ पर क्या आ चुकी है, हमारी रेस्पेक्टिव गैस आ चुकी है। क्लियर। तो इस केस में खाली स्पेस ज़्यादा है, इट मीन्स यहाँ पर गैस की अमाउंट क्या है, ज़्यादा। यहाँ पर खाली स्पेस कम है, इट मीन्स यहाँ पर गैस की अमाउंट क्या होगी, कम। जिस गैस की अमाउंट कम है वो हमारी कौन सी है, ऑक्सीजन, और जिस गैस की अमाउंट ज़्यादा है वो कौन सी है, हाइड्रोजन। एंड हेयर it is clearly observed that amount of hydrogen is almost double than oxygen, 2 times ज़्यादा है। इससे क्वेश्चन आता है why the amount of this gas is more than the gas in the other test tube, name the gas। तो गैस का नेम हाइड्रोजन आएगा, इसकी अमाउंट ज़्यादा क्यों है, बिकॉज in this case the number of moles of hydrogen are double than oxygen according to the balanced chemical equation। वाटर लिया हमने, इसके अंदर एसिड ऐड कर रखा है, इलेक्ट्रिसिटी पास की है, इट विल डिकम्पोज टू प्रोड्यूस H2 एंड O2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितने हैं, 1। तो रेशो हमारे पास H2 रेशो O यहाँ पर क्या आएगा, H2 रेशो O2, इट विल कम्स आउट टू बी 2 रेशो 1। देयरफॉर अमाउंट ऑफ वन गैस इज 2 times मोर देन द अदर गैस एंड द गैस विच इज़ मोर इन अमाउंट इज़ नेम्ड एज हाइड्रोजन। और ये कलेक्ट कहाँ पर हुआ है, इट इज़ कलेक्टेड एट द कैथोड। क्वेश्चन इस तरह से घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। लास्ट हमारी फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा वो होती है जिसके अंदर हम लाइट की प्रेजेंस में गिवन सब्सटेंस को डिकम्पोज करवाते हैं। बेस्ट एग्जांपल इसमें 2 ही हमारे, फर्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl एंड सेकंड इज डिकम्पोजिशन ऑफ decomposition of AgCl in presence of HNu। HNu means sunlight है ये, it means the reaction undergo decomposition in presence of sunlight, it is also called as photolysis reaction or photo decomposition reaction। this AgCl which is white in color on in presence of sunlight decomposed to produce silver with evolution of Cl2 gas, and the color of this silver from white changes into gray or silvery color। clear। Second is decomposition of AgBr in presence of sunlight again, it will decompose to produce 2Ag with evolution of bromine gas, again the color of this silver is grey or silvery and color of this AgBr is yellow। क्वेश्चन आएगा, a yellow salt on heating in presence of light decompose, heating word लिखो या sunlight लिखो, a yellow salt on heating in presence of sunlight decompose to produce a grey solid, name the yellow substance and the grey solid formed and write the balanced equation। clear। कुछ बेटा और एग्जांपल्स भी गिवन आपकी बुक में, आपको सारे स्टडी करने हैं।